स्टूडेंट्स, आज के सेशन में लास्ट पार्ट ऑफ एपी में हम आपको क्वेश्चन नंबर 17 से डिस्कस करेंगे। 16 क्वेश्चंस एपी के इम्पोर्टेंट 16 क्वेश्चंस हम पिछले 4 पार्ट्स में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अब आज के सेशन में देखिए क्वेश्चन नंबर 17। The interior angles of a polygon are in AP. The smallest angle is 120 degree and the common difference is 5 degree. Find the number of sides of the polygon. In this question, the smallest angle is 120, means the first angle is 120 degree. So A is equal to 120 degree. Common difference is 5 degree, D is 5 degree. Find the number of sides of the polygon. If such type of polygon is possible, then how many sides must be there? तो आप यहाँ पे कहेंगे let the number of sides of the polygon be n. So we will let the number of sides in the polygon be n. तो अगर पॉलीगन के अंदर n साइड्स हैं तो n एंगल्स होंगे, तो देयर विल बी n एंगल्स and the first angle is 120 degree, common difference is 5 degree. Sum of all the angles of the polygon, sum of all the interior angles of the polygon will be equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d, because all the interior angles of the polygon are in AP, and this sum will be equal to, by geometry, it will be equal to n minus 2 into 180 degree. If there are n sides in the polygon, then the sum of the angles, interior angles of the polygon is n minus 2 into 180 degree. You can check it. If you have a triangle, then n is equal to 3, and 3 minus 2 into 180, the sum of the interior angles of a triangle is 180 degree. If you have a quadrilateral, then number of sides is 4. 4 minus 2. 4 minus 2 is 2. 2 into 180, 360 degree. So if we have a polygon of n sides, then sum of all the interior angles is equal to n minus 2 into 180 degree. But according to this question, the angles are in AP, so we can find the sum of all those interior angles using the formula of AP. S is equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d. Now then we will equate the sum of all those angles equal to n minus 2 into 180 degree. So here if we put it equal to n minus 2 into 180 is equal to n by 2 2a. The first angle is of this polygon is 120 degree plus n minus 1 into common difference is 5 degree. I have omitted the degree sign here. So 180 into n minus 2 is equal to n by 2 into 240 plus 5n minus 5. This implies 180 into n minus 2 is equal to n by 2 into 240 minus 1 is 235 plus 5n. Now from these two terms we can take 5 common. If we take 5 common, then 180 into n minus 2 is equal to n upon 2, and 5 is common,
in these two terms we can take 5 as common, and 5 4s are 20, 5 4s are 23, 47 plus n. Now from this 5 we can cancel out this 180 36 times. 72 into n minus 2 is equal to n into 47 plus n. 72 into n, 72n minus 144 is equal to 47n plus n square. Transposing these two terms to the other side, or we get 0 is equal to n square plus 47n minus 72n plus 144 is equal. Now rearranging these two terms, we get n square and plus 47 minus 72, 12 7 5 642 minus 25n plus 144 is equal to 0. Now this is a quadratic equation in n. We can factorize it. अगर इसे factors करें तो n square and factors of 25, 16 and 9. 16 and 9 is 25 and 16 into 9 is 144. Minus 16n minus 9n plus 144 is equal to 0. From the first two terms, n is common. If we take n common, n minus 16, and from the remaining two terms, minus 9 is common, n minus 16 is equal to 0. That is n minus 16 into n minus 9 is equal to 0, which gives two values of n. There are two values of n, either n is equal to 16 or n is equal to 9. Now both the values are positive. Now let us check which value fits the solution. So if we take n is equal to 16, then the last angle, an is equal to a plus n minus 1 into d. Let us check the last angle of the polygon. So if we take an is equal to 16, then the last angle will be a is 120 plus 16 minus 1 into common difference is 5. So 120 degree plus 16 minus 1 is 15 into 5. That is 120 degree plus 75. And this 120 plus 75 is 195 degree. Last angle is 195 degree if we take n equal to 16. Now if we take n is equal to 9, then what is the last angle? Let us find. So an will be equal to, a is 120 degree plus 9 minus 1 into common difference is 5 degree. So 120 degree plus 9 minus 1 is 8. 8 into 5. 120 degree plus 40 degree. That is 160 degree. And in the first case, the last angle is 195 degree. So this is not possible. The angle of a polygon cannot be greater than 180 degree. So the angle which fulfills the condition is 160 degree. That is for n is equal to 9. For n is equal to 9, अगर n की वैल्यू 9 है तो हमारा लास्ट एंगल 160 है, और जो कि पॉसिबल है एक पॉलीगन में 160 डिग्री. तो देयरफॉर द फाइनल आंसर इज द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन शुड बी इक्वल टू 9. Student, next question number 18. If the pth term of an AP is A and qth term is B,
show that the sum of p plus q terms is p plus q upon 2 a plus b plus a minus b upon p minus q. Now already a is in the question, तो हम फर्स्ट टर्म को a नहीं लेंगे यहाँ पे, तो हम फर्स्ट टर्म लेते हैं. लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ द ए पी बी x एंड कॉमन डिफरेंस बी y. So let the first term of AP be x and common difference be y. Now the pth term of the AP is a. तो pth टर्म की वैल्यू है a. तो pth टर्म को हम क्या कहते हैं, ए पी की वैल्यू है a. और pth टर्म को आप फाइंड करेंगे फॉर्मूला a प्लस एन माइनस वन इंटू डी. यहाँ फर्स्ट टर्म हमने ले लिया x, तो x प्लस p माइनस वन इंटू वाई इज इक्वल टू a. Now the qth term is b, that is aq is b, and qth term will be then x, first term is x plus q minus 1 into y is equal to b. हमें फाइंड करना है p प्लस q टर्म्स का सम. तो सम ऑफ p प्लस q टर्म्स के लिए sum of p plus q terms will be equal to p plus q by 2, 2a that is 2x plus p plus q minus 1 into y using the formula n by 2, 2a plus n minus 1 into d. अब देखिए हमारे पास दो तरीके हैं कि एक तो हम x और y की वैल्यू फाइंड करें. x और y की हमें सेपरेट दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी. एक है कि हम थोड़ा सा अपना माइंड यहाँ अप्लाई करें. अगर हम इन दोनों को देखिए रिजल्ट में a प्लस बी इज़ देयर, तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें तो यहाँ ये देखिए 2x और समथिंग p प्लस q, ये इसको ऐड करके कुछ बनेगा और a प्लस बी. तो a प्लस बी इज हेयर इन द रिजल्ट. तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हम करते हैं ऐड. इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग x और y सेपरेटली हम उसे फाइंड करें, हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कर देंगे ऐड, क्योंकि हमें यहाँ देखिए रिजल्ट में a प्लस बी इज देयर. तो ऑन एडिंग, दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन, और इसमें रखेंगे ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड. और इसका हमें आइडिया कहाँ से मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है, क्योंकि हमारे पास आ रहा है a प्लस बी और हम a प्लस बी. तो अगर हम ऐड करते हैं तो ये आता है 2x प्लस, इस साइड में y कॉमन लेंगे आप, तो p प्लस q माइनस 2 इंटू वाई. p प्लस q एंड माइनस 1 एंड माइनस 1 इज माइनस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू a प्लस बी. अब देखिए यहाँ 2x प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू वाई, और यहाँ है p प्लस क्यू माइनस 2 इंटू वाई. तो हम थोड़ा सा एडजस्टमेंट करते हैं, इसे लिखते हैं 2x प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू वाई, और एक जो माइनस वाई है उसे हम एडजस्ट कर देते हैं यहाँ, माइनस वाई इज इक्वल टू a प्लस बी. क्योंकि जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो p प्लस क्यू माइनस 1 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, अगर अब आई तो p प्लस क्यू माइनस 1 एंड माइनस 1, तो ये p प्लस क्यू माइनस 2 के इक्वल हो जाएगा. लेकिन यहाँ से आपको डायरेक्ट इस टर्म की, इसकी एक्सप्रेशन की वैल्यू मिल जाएगी. तो अब आप क्या करेंगे कि y को कर देंगे ट्रांसपोज अदर साइड में. तो आपको बी गेट हियर 2x प्लस p प्लस q
क्यू माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस वाई। तो देखिए इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू जो कि यहाँ पे हमें चाहिए, यहाँ सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म्स फाइंड करने के लिए, ये हमारे पास आ गई है, लेकिन हमें रिक्वायर्ड है वाई। तो वाई को फाइंड करने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, अगर हम फर्स्ट से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अगर हम ऑन वाई की वैल्यू फाइंड करनी है तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो x एंड x कैंसिल्स आउट और यहाँ पे आ जाएगा पी वाई माइनस वाई एंड माइनस क्यू वाई प्लस वाई, और x x कैंसिल हो जाएंगे आपके, या ऐसे लिख लीजिए x प्लस पी वाई माइनस x एंड माइनस क्यू वाई प्लस वाई इक्वल टू ए माइनस बी। अब देखिए x और x कैंसिल और y आपका कैंसिल है, तो यहाँ से p माइनस q और ये y कॉमन लेंगे इन दोनों टर्म से, इंटू वाई इज इक्वल टू ए माइनस बी, और यहाँ से y की वैल्यू आएगी आपकी a माइनस बी अपॉन p माइनस क्यू। अब y की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, तो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। देयरफॉर 2x प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू a प्लस बी, और प्लस y की वैल्यू हम पुट कर देंगे a माइनस बी अपॉन p माइनस क्यू। अब ये पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू को हम पुट करेंगे कहाँ पे, पुटिंग दिस वैल्यू, ये फोर्थ जो हमारा एक्सप्रेशन आ गया है, ये वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3। और इक्वेशन 3 में अगर हम वैल्यू ये पुट करेंगे तो सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म्स, सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म्स विल बी इक्वल टू p प्लस क्यू बाई 2 इंटू, और इस पूरे एक्सप्रेशन की जगह पे आप लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस ए माइनस बी अपॉन p माइनस क्यू, a प्लस बी प्लस ए माइनस बी अपॉन p माइनस क्यू। तो देखिए इस तरह से सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म्स आपका आ चुका है, p प्लस क्यू बाई 2 a प्लस बी प्लस ए माइनस बी अपॉन p माइनस क्यू। बैठी रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द नंबर ऑफ आइडेंटिकल टर्म्स ऑफ द टू एपीज 2, 5, 8, 11 अप टू 50 टर्म्स एंड 3, 5, 7, 9 अप टू 60 टर्म्स। तो देखिए इन दोनों एपीज को अगर हम इनको पूरे 60 टर्म्स तक लिखते हैं तो इन दोनों एपीज में कुछ टर्म्स सेम वैल्यू वाले हैं। तो कितने टर्म्स दोनों एपीज में सेम वैल्यू वाले हैं ये हमें फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। तो अब देखिए जरा हम कुछ टर्म्स को लिख के देखते हैं इसमें। अगर हम फर्स्ट एपी को देखें तो 2, 5, 8 और 11 और इसके बाद 14, इस टाइप से एपी एक्सटेंड होगी अप टू हमें ये 50 टर्म्स तक ले जाना है। और सेकंड एपी को अगर हम लिखते हैं 3, 5, 7, 9, 11, इसके आगे भी अगर हम लिख लें फर्स्ट वाली एपी में 14 के बाद 17 आएगा, इस एपी में 3, 5 और 2, 7, 7 to 9, 9 to 11, 13, 15 और ये 17। तो आप ये देख रहे हैं कि कुछ टर्म्स अप टू हमें 60 टर्म्स ले जाना है, तो इनमें कुछ टर्म्स सेम आ रहे हैं,
कौन कौन से आइडेंटिकल टर्म्स आ रहे हैं, देखिए 5 दोनों एपीज में है। इसके बाद देखिए आप जो नेक्स्ट जो टर्म एपी में है वो है 11, दोनों ही एपीज में आ रहा है। तो इसी तरह से एक और टर्म आ रहा है आगे 17। तो इस तरह से इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑल द टर्म्स एंड देन फाइंडिंग देयर नंबर, हमें फाइंड करना है कि कितने ऐसे आइडेंटिकल टर्म्स इन दोनों एपीज में आएंगे। तो इसके लिए देखिए ये जो आइडेंटिकल टर्म्स हैं वो कौन कौन से हैं हमारे। आइडेंटिकल टर्म्स हैं आइडेंटिकल टर्म्स वो हैं 5, फिर आता है 11 और फिर आता है 17, इस तरह से। यानी कि जो आइडेंटिकल टर्म्स हैं उनमें वो भी एपी में है, और वो जो कॉमन डिफरेंस है वो दोनों एपीज का जो एलसीएम है उसके इक्वल का कॉमन डिफरेंस के इक्वल है। तो अब फर्स्ट एपी का देखिए कॉमन डिफरेंस है 3 और सेकंड एपी का कॉमन डिफरेंस है 2, और 3 और 2 का अगर हम एलसीएम फाइंड करें तो 6 होता है। तो ये एपी जो हमारी बन रही है आइडेंटिकल टर्म्स की, जो उसमें का कॉमन डिफरेंस है 6, कॉमन डिफरेंस 6 है, इक्वल टू 6। तो ऐसे आइडेंटिकल टर्म्स का नंबर कितना है हमें ये फाइंड करना है। तो अभी हम ये देखते हैं कि फर्स्ट एपी की जो हाईएस्ट वैल्यू है यानी 50th टर्म है उसका क्या है, उसकी वैल्यू 50th टर्म ऑफ फर्स्ट एपी। तो फिर लेट अस फाइंड द 50th टर्म ऑफ द फर्स्ट एपी। तो फर्स्ट एपी हमारी है ये, और इसके फर्स्ट टर्म है ए 50 का अगर हम फाइंड करें 50th टर्म तो ये होगा 2 प्लस ए प्लस n माइनस 1 मीन्स 50 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस ऑफ द फर्स्ट एपी इज़ 3, यानी कि इसका जो लास्ट टर्म होगा 50th टर्म 2 प्लस 50 minus 1 is 49 into 3 and this is equal to 2 plus 3 9 जा 27, 3 4 जा 12 and 2 14 यानी 149। फर्स्ट एपी का जो लास्ट टर्म है वो होगा 149। अब सेकंड एपी को देखते हैं कितनी वैल्यू तक जाएगी। तो इसका 60th टर्म ऑफ सेकंड एपी और 60th टर्म है वो होगा इसका 3a60 इज इक्वल टू ऑफ सेकेंड एपी 60th टर्म a प्लस दैट इज 3 प्लस 60 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस है 2। सो दिस इज इक्वल टू 3 प्लस 59 इंटू 2, 59 इंटू 2 मीन्स 2 9 18, 118 प्लस 3 दैट इज 121। तो हमारी ये जो आइडेंटिकल टर्म्स वाली एपी है वो ज़्यादा से ज़्यादा किस वैल्यू तक जा सकती है, 121 तक जा सकती है, क्योंकि 121 जो वैल्यू है उसके बाद ये सेकंड एपी मैक्सिमम 120 तक जाएगी। ठीक है, तो आइडेंटिकल टर्म्स हमारे लीस्ट वैल्यू तक हो सकते हैं। दोनों एपीज में जो लास्ट टर्म की लीस्ट वैल्यू है, फर्स्ट एपी हमारी 149 वैल्यू तक जाएगी और सेकेंड एपी हमारी केवल 120। तो हमारे पास जो कॉमन टर्म्स विल बी अप टू वैल्यू 121। कॉमन टर्म्स में बी अप टू, कॉमन टर्म्स विल बी अप टू 121, क्योंकि जो सेकेंड एपी आपकी 121 पे फिनिश हो जाएगी। इसके बाद अगर कुछ कॉमन टर्म्स आने का मतलब ही नहीं है। तो अगर हम ये फाइंड करें कि ये जो एपी है हमारी आइडेंटिकल टर्म्स की, ये 121 तक ऐसी वैल्यूज कितनी आ सकती हैं हमारे, उतने ही कॉमन टर्म्स हमारे हो जाएंगे। तो हम जो है लेट द nth टर्म of 5 11 be
121, यानी कि अगर हम इसका जो लास्ट टर्म है उसको 121 या इसके इक्वल लेके चलेंगे या उससे लेस लेके चलेंगे, तो इसका nth टर्म हम फाइंड करते हैं 5 प्लस n माइनस 1 इंटू nth टर्म ऑफ दिस AP, 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 6. It should be, this value should be less than or equal to 121, क्योंकि ये वैल्यू इंक्रीज होते होते 121 से पहले तक या उसके इक्वल तक हमें चाहिए. उसको फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे आगे. 5 प्लस 6n माइनस 6 इज लेस देन और इक्वल टू 121, दैट इज 6n माइनस 1 इज लेस देन और इक्वल टू 121 और 6n इज लेस देन और इक्वल टू 122. और इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो n शुड बी लेस देन और इक्वल टू 122 अपॉन 6. 122 अपॉन 6 मीन्स if you divide 122 by 6 then 20 times 120, so 20 n is less than or equal to 20 and 2 by 6, that is 20 and 1 by 2. The value of n should be less than 20 and 1 by 3. अब n की वैल्यू तो केवल इंटीजर हो सकती है, तो n should be equal to 20. तो इस तरह से इन दोनों APs में अगर आप देखें, अगर ये AP इस तरह से इंक्रीज कॉमन टर्म्स के साथ चलती है, सेम टर्म्स के साथ 5, 11, 17, तो ये इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो 20 आपका आएगा. तो इन दोनों APs में जो आइडेंटिकल टर्म्स हैं उनका नंबर होगा 20. स्टूडेंट्स, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की AP की सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन नंबर 20, एंड द क्वेश्चन इज इफ देयर आर 2n plus 1 टर्म्स इन एन AP, then prove that the sum of odd terms and the sum of even terms is in the ratio n plus 1 is to n. तो देखिए सबसे पहले हमें AP लिखते हैं. लेट A1, A2, A3, A4 and A2n and A2n plus be in AP. These values, first term, second term, third term, fourth term, 2nth term and 2n plus 1. 2n plus 1 means odd terms. 2n plus 1 is an odd number, तो ये जो AP है इसमें नंबर ऑफ टर्म्स हैं odd, 2n plus 1. तो अगर किसी भी सीक्वेंस में odd टर्म्स होते हैं, अगर odd हैं तो 2n plus 1 टर्म्स हैं तो odd टर्म्स का नंबर होगा n plus 1. फॉर एग्जांपल जैसे अगर आपके पास कोई AP है जिसमें 5 टर्म्स हैं, A4, A5, तो नंबर ऑफ ऑड टर्म्स यानी फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ, इनका नंबर होगा 3 और इवन टर्म्स का नंबर होगा 2, यानी कि ऑड टर्म्स का नंबर 1 मोर देन द नंबर ऑफ इवन टर्म्स. तो अगर किसी भी AP में 2n plus 1 टर्म्स हैं तो इसमें n plus 1 टर्म्स ऑड होंगे और n टर्म्स इवन होंगे. सो देयर आर n plus 1 odd terms and n even terms in the AP. अब देखिए इसके फर्स्ट टर्म को हम A1 को लेट कर लेते हैं A. लेट फर्स्ट टर्म ऑफ AP बी A एंड कॉमन डिफरेंस बी D. यानी कि फर्स्ट टर्म जो A1 हमने यहाँ लिखा हुआ है उसको हमने
फर्स्ट टर्म को ए कह दिया और कॉमन डिफरेंस इज डी। अब देखिए सम ऑफ ऑड टर्म्स हम फाइंड करें पहले, सम ऑफ ऑड टर्म्स। तो ऑड टर्म्स हमारे कौन कौन से हैं? फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म और a2n+1, a1 प्लस a3 फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म, और इस तरह से हम कंटिन्यू करेंगे और सबसे लास्ट में आएगा a2n+1। अब देखिए a1 की वैल्यू हमारी क्या होगी? फर्स्ट टर्म की वैल्यू, फर्स्ट टर्म की वैल्यू हमारी होगी a। थर्ड टर्म अगर हम फर्स्ट टर्म a है, कॉमन डिफरेंस d है, तो थर्ड टर्म अगर आप फाइंड करेंगे यूजिंग द फॉर्मूला a k = a + k - 1 × d, अगर आप थर्ड टर्म फाइंड करते हैं तो उसकी वैल्यू आ जाएगी a + 2d। फिफ्थ टर्म की वैल्यू आपकी होगी a + 4d, और जो सबसे लास्ट टर्म है उसकी वैल्यू आ जाएगी a + 2n+1 - 1 a + 2nd। अब आप देखिए कि ये जो सारे टर्म्स हैं ऑड टर्म्स, ये किस में हैं? AP में हैं। a + 2d, a + 4d, कॉमन डिफरेंस देखिए 2d का आ रहा है, और लास्ट है हमारा a + 2nd। और इनका नंबर ऑफ टर्म्स हमारा हमने बताया था आपको कि अगर किसी सीरीज़ में ऑड टर्म्स हैं, अगर 2n+1 टर्म्स हैं तो उसमें से n+1 टर्म्स जो ऑड होते हैं और n टर्म्स जो इवन होते हैं। तो इस केस में नंबर ऑफ ऑड टर्म्स हो जाएगा n+1। तो हम यहाँ लिखेंगे सम ऑफ, और ये AP है, दिस इज एन AP बिकॉज द कॉमन डिफरेंस यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, कॉमन डिफरेंस हियर द टर्म्स आर इन AP, और कॉमन विद कॉमन डिफरेंस 2d, 2d का कॉमन डिफरेंस है। देखिए अब आपको फाइंड करना है सम ऑफ n+1। नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे इस केस में हैं आपके n+1। एज आई टोल्ड यू, इफ देयर आर 2n+1 टर्म्स इन ए सीक्वेंस देन n+1 टर्म्स आर ऑड एंड n टर्म्स आर इवन। ये एग्जाम्पल लेके भी मैंने आपको बताया कि अगर 5 टर्म्स हैं तो 5 में से 3 ऑड हैं और 2 इवन हैं। तो अब देखिए यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे सम ऑफ n टर्म्स का, तो n+1/2 इन सारे टर्म्स का सम ऑफ n+1 टर्म्स अगर हम फाइंड करें, इन सारे n+1 टर्म्स का सम n+1/2, और फर्स्ट टर्म इसका है हमारा फर्स्ट, या तो हम यूज कर सकते हैं फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का फॉर्मूला, और या फिर हम 2a + n-1 × d से। ये हमने शो कर दिया है कि ये क्या है? AP है, और कॉमन डिफरेंस इसका क्या है? 2d है। तो AP का हम फॉर्मूला फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म भी यूज कर सकते हैं। तो n+1/2 फर्स्ट टर्म इसका है a, और लास्ट टर्म है इसका a + 2nd, a + 2nd। अब देखिए सम ऑफ n+1 टर्म्स अगर हम फाइंड करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो सम ऑफ n+1 टर्म्स विल बी इक्वल टू n+1/2, और ये वैल्यू है 2a + 2nd। 2 कैन बी टेकन एज कॉमन, तो n+1/2 और 2 इज कॉमन a + nd, और ये 2 से देखिए 2 कैंसिल हो गया। तो ये सम ऑफ n+1 टर्म्स आ गया हमारे ऑड वाले टर्म्स का सम। और इवन टर्म्स के लिए हमारे जो इवन टर्म्स हैं उनका नंबर कितना है? इवन टर्म्स हमने कहा n है, तो हम यहाँ इवन टर्म्स लिखते हैं। कौन कौन से इवन टर्म्स होंगे? देखिए इसमें a2, फिर a4, और लास्ट में आएगा a2n। तो इवन टर्म्स जो हमारे हैं उनका सम अगर हम फाइंड करते हैं, जो कि हैं कितने हैं? n। सम ऑफ n इवन टर्म्स तो होगा a2 + a4, और लास्ट में आएगा a2n। अब इन टर्म्स की वैल्यू क्या होगी? a2 टर्म जो है उसकी वैल्यू है a + d,
यूजिंग दिस फॉर्मूला ए प्लस के माइनस वन इंटू डी। ए 4 टर्म की वैल्यू है आपकी ए प्लस 3d और लास्ट वाले टर्म की ए 2n की वैल्यू है ए प्लस 2n माइनस वन इंटू डी। अब देखिए ये जो टर्म्स हैं ये भी दिस इज एन ए पी, दिस इज एन ए पी विद कॉमन डिफरेंस इसका कितना है, कॉमन डिफरेंस है इसका 2d, कॉमन डिफरेंस 2d। अब ये AP का हमें सम फाइंड करना है जिसका कि हमें कॉमन डिफरेंस 2d है, फर्स्ट टर्म a प्लस डी है और लास्ट टर्म है a प्लस 2n माइनस वन इंटू डी। तो अब देखिए इस सीक्वेंस का फाइंड करने के लिए सम ऑफ n टर्म्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स, इवन टर्म्स एज आई टोल्ड यू, इवन टर्म्स का नंबर है n, तो यहाँ पे हम करेंगे n/2 और फर्स्ट टर्म इसका है a2 और लास्ट टर्म है इसका a2n जिसकी वैल्यू हमारे पास पता है कि फर्स्ट टर्म की वैल्यू है a प्लस डी और लास्ट वाले टर्म की वैल्यू है a प्लस 2n माइनस वन इंटू डी, a प्लस 2n माइनस वन इंटू डी। अगर हम इसे आगे सॉल्व करते हैं तो n/2 और ये आ जाएगा a एंड a इज 2a प्लस d प्लस 2nd और माइनस d और ये d और d आपका कैंसिल, यहाँ से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, n/2, 2 इज कॉमन a प्लस nd और ये 2 भी आपका कैंसिल। अब हमें फाइंड करना है ये ऑड टर्म्स का सम और इवन टर्म्स का सम का रेशियो। तो अगर हम फाइंड करते हैं sn प्लस 1 अपॉन sn, क्योंकि ऑड टर्म्स का नंबर है n प्लस 1 और इवन टर्म्स का नंबर है n, तो अगर हम इसका रेशियो फाइंड करते हैं तो ये है n प्लस 1 इंटू ए प्लस एन डी और दूसरा जो रेशियो है वो है n इंटू ए प्लस एन, दूसरा जो सम है वो है n इंटू ए प्लस एन डी। ए प्लस एन डी आपका कैंसिल है। तो इस तरह सम ऑफ ऑड टर्म्स कितने थे n प्लस 1 उनका सम और इवन टर्म्स का जो सम है जो कि है n, वो रेशियो आ रहा है n प्लस 1 इज टू n एंड यही हमें प्रूव करना था कि सम ऑफ ऑड टर्म्स एंड द सम ऑफ इवन टर्म्स का रेशियो है इस AP में वो है n प्लस 1 इज टू n। तो इसके साथ ही आपका कि जो AP के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का के जो पार्ट्स है सारे फिनिश हो गए हैं। इसमें हमने आपको 20 क्वेश्चंस बताए थे। अब जो नेक्स्ट पार्ट हम जिस चैप्टर का लाएंगे उसके बारे में आपको हम इन्फॉर्म कर देंगे।